Good morning, students. Today we are going to start with the chapter carbon and its compounds, right? We all know that carbon is an element with atomic number 6 and atomic mass 12, right? And carbon is the only compound which is responsible for the formation of huge number of carbon compounds, and on the basis of carbon only the whole organic chemistry is based. If I remove carbon from the organic chemistry, the whole organic chemistry will be demolished. So why carbon is the only element that is responsible for this whole chemical reactions, complex hydrocarbon reactions? Why carbon is the only element that is responsible? Why on removing carbon I will not get any reaction of the organic chemistry? What is the special feature in this carbon? What makes this carbon more special? What is the special kind of bonding that is shown by the carbon? So these all are the questions that we are going to deal with today in this chapter. And before discussing anything, we will discuss the introduction of carbon, basic properties of carbon, and then step by step we will study why carbon is important in organic chemistry. This is the general introduction. Carbon is the chemical element. We all know that the symbol of carbon is capital C, and as I told, its atomic number is 6 and atomic mass is 12, and it is a member of group 14 of the periodic table. And group 14 includes other members than carbon, like carbon, silicon, germanium, stannum, that is tin, and Pb, that is lead, right? And it is non-metallic. Fine, it is not a metal. Keep in mind, it is non-metallic element. Tetravalent. Tetra means 4, valent means valency, right? So carbon can form or can make 4 bonds, or it need 4 electrons to complete its octet. That's why it is known as tetravalent. And there are 3 naturally occurring isotopes: carbon 12, carbon 13 and carbon 14. What do we mean by these 12, 13 and 14, and what do we mean by isotopes? I hope it is clear to all, but just for revision, let me tell you. Carbon species or allotropes of carbon is different thing, and isotopes of carbon is different thing. Isotopes are the species which have same atomic number but different atomic masses. So all these carbon, that is 12C, 13C and 14C, have similar atomic number, that is 6, but different mass number. And what are these mass numbers? These are 12, 13 and 14. And carbon 14 is radioactive. Now, what are the characteristics of hydrocarbon? Before moving on to that, I would like to discuss what do we mean by hydrocarbon. ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? As the name is suggesting, it is made up of hydrogen plus carbon. ठीक है, अब हमने ये पढ़ा that carbon is tetravalent, it can form 4 bonds, but the basic thing that I need to discuss before moving on to hydrocarbon is that what kind of bond is formed by carbon. Carbon कौन से type का bond बनाता है? Here comes bonding in carbon. Carbon forms covalent bond. Why it forms covalent bond? Why does not it form ionic bond? The reason is that we know that atomic number of carbon is 6. तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे करेंगे? 2, 4. And we all know to complete the octet, या तो it should gain 4 electron or it should lose 4 electron. Let us take the first case. अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड हमें ये भी पता है कि कोई भी एटम, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? एंड वेयर आर द प्रोटॉन्स प्रेजेंट? प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर और इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. सो अगर मैं नॉर्मल कंडीशन देखूं, आई हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन एंड 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, राइट?
अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, सो आई कैन से दैट 6 प्रोटॉन्स आर होल्डिंग दीज 6 इलेक्ट्रॉन बाय आयनिक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। अगर मैं 4 का इलेक्ट्रॉन और कहीं से लाकर ऐड कर देती हूँ, इन टोटल अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास? देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? Now it is difficult for these 6 protons to hold these 10 electrons, क्योंकि पहले हमारे पास 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमारे पास इक्वल बैलेंस था। नाउ आई एम हैविंग 6 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन करती हूँ तो सो इट विल क्रिएट अ situation of imbalance, because 6 protons it will be very difficult to hold on these 10 electrons। यानी कि अब 6 प्रोटॉन्स जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को बहुत डिफिकल्टी से हैंडल कर पाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये पहला केस तो है, ये हमने साइड में रख दिया। सेकेंड केस, इफ़ इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि अगर ये आउटर शेल के 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी कि ड्यूप्लेट बन जाएगा। एंड हमने देखा है कि काफ़ी एलिमेंट्स में डुप्लेट रहता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो अगर मैं 4 एलिमेंट लूज कर दूं तो क्या मेरा पर्पस फुलफिल हो सकता है? नो। वाई? बिकॉज टू लूज एन इलेक्ट्रॉन सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। To lose second electron, further more energy is required. To lose third electron, tremendous amount of energy is required. And losing fourth electron is not thermodynamically possible. यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए a huge amount of energy is required, which is thermodynamically impossible। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो वो गेन कर पा रहा है, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है। तो हमारा आयनिक बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहीं पे फेल हो गया है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ईदर गेनिंग और लूजिंग, एंड कार्बन इज़ नॉट एबल टू ईदर गेन द इलेक्ट्रॉन और लूज द इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास बीच का रास्ता कौन सा निकला? वी कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो शेयरिंग में उसको कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? इट हैव टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। वी नो दैट कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय forming 4 covalent bonds, it can form its octet. So we come to the conclusion that carbon is tetravalent. It can form 4 covalent bonds. That's why it have 4 valency, ठीक है। You can read the matter that is given in the slide, so that it will be easy for you to understand. So we can say that bonding in carbon is covalent. It forms 4 covalent bonds. कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम पहले भी पढ़ रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म द डुप्लेट, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या जो एक ही शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इट कैनॉट गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने जितनी एनर्जी या उतना स्पेस इसमें नहीं होता, बिकॉज हाइड्रोजन इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। इट कैनॉट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड विद अनदर हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग H2, right? Hydrogen can also form bond with any other element which can share this 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई और ऐसा एलिमेंट है जो इसके साथ एक बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद दैट। दैट्स वाई वी हैव सीन दैट इन मीथेन, दैट इज CH4, कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे। ऑक्सीजन में हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन अपनी कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे शो करेगा? ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन में आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। वी हैव स्टडीड अबाउट MgO, जिसमें मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है किसको? ऑक्सीजन को। पर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्डिंग की। कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हम कोवेलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड्स है उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऑक्सीजन के बीच में देयर इज डबल बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन में हम देखें तो देयर इज ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N।
सो कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो कार्बन जो है वो बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। एक और स्पेशल प्रॉपर्टी आती है कार्बन की, जस्ट रीड हियर कि कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 3 मिलियन। मतलब कि पूरी पीरियडिक टेबल में देयर इज नो अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन which can form variety of organic compounds या variety of compounds which ranges around 3 million. It is more than the number of compound formed by all other element. And why? This is because, first come to the first point, carbon can bond with other carbon atoms to form long chain, branched chain and closed ring. This property is called catenation. This is very important question. ये हमेशा पूछते हैं कि why carbon can form large number of compounds? Because of the special property which is known as catenation. Catenation को अगर हम simple terms में समझे, it is the tendency of any element to form bond with similar element to form the long chains, यानी कि अपने ही जैसे किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बना के लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन करना या रिंग्स का फॉर्मेशन करना, दिस इज नोन एज कार्बन। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि वी कैन से दैट द अदर एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 14, ग्रुप 14 में कार्बन के साथ जो और भी एलिमेंट है वो भी तो ये प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, लाइक कार्बन के साथ सिलिकॉन, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। वाई डोंट दे शो दिस मच कैटिनेशन? उनमें भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है बट नॉट एज एक्सक्लूसिव एज दैट इज प्रेजेंट इन कार्बन। वाई दिस हैपन्स? सिलिकॉन में भी कुछ हद तक ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है लॉन्ग चेन्स की वो दिखती है, बट ओनली अप टू 14 और 15 सिलिकॉन एटम। उसके बाद या तो वो स्टॉप हो जाएगा या फिर जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल हो जाएगा। बट कार्बन में C20, C200, C135 बहुत सारी जो है लॉन्ग चेन जो है एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर लॉन्ग चेन्स और रिंग्स का फॉर्मेशन कर सकता है। दिस इज़ बिकॉज कार्बन अमंग इट्स ग्रुप, यानी कि उसके ग्रुप में अगर हम देखें इट हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज़, तो उसका बेनिफिट मिलता है कार्बन को। ठीक है, कार्बन की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी जो है वो उसकी साइज़ की भी वजह से है कि उसकी साइज़ अप्रोप्रिएट है कैटिनेशन के लिए या लॉन्ग चेन्स बनाने के लिए। एंड अगर हम कार्बन से सिलिकॉन जो जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट है इसके नीचे आते हैं तो सिलिकॉन की जो साइज़ है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो वो इतनी लॉन्ग चेन्स नहीं बना पाता जितनी लॉन्ग चेन जो है स्टेबिलिटी से कार्बन बना पाता है। नेक्स्ट, सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4, इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स और विद अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन एक्सेट्रा। मेनली जो है कार्बन के जो बॉन्ड्स है वो इन एलिमेंट्स के साथ हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन एक्सेट्रा। बट कार्बन नहीं हो तो उस स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते, कार्बन शुड बी देयर। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला जो एग्जांपल है, तुम देखो लॉन्ग चेन बना रहा है कार्बन, ब्रांच्ड चेन में ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, क्लोज रिंग में रिंग्स प्रेजेंट होती है, बट सारे स्ट्रक्चर में द कॉमन फीचर इज दैट कार्बन शुड फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट कम्स हाइड्रोकार्बन। जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप हाइड्रोकार्बन वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेसिकली दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दीज आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमने लिया एल्केन्स। एल्केन्स वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विच हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड देयर नेम एंड्स विथ एन, यानी कि हम नेम के पीछे जो चीज़ लगाते हैं उसको हम कहते हैं सफिक्स, और नेम के आगे जो चीज़ लगाते हैं उसको हम कहेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि कार्बन जो है, फर्स्ट वाला कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, CH4। ठीक है, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट होगा, आई विल टेल यू ये टेबुलर फॉर्म में कि हम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, जस्ट अभी छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। कार्बन जब एक होगा तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे मेथ, METH, और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम सफिक्स लगाएंगे एन, ANE।
अगर हम यहाँ पर देखें सेकंड में, कार्बन जब 2 होंगे, ठीक है, कार्बन जब 2 होंगे तो हम नेम लिखेंगे इथ, प्रीफिक्स लिखेंगे इथ, ETH, और सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे, इन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड एंड विच एंड्स विद द सफिक्स इन, एंड दीज comes under alkenes. All the single bond carbon compounds come under alkenes. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मोर देन सिंगल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम उसे एल्कीन कहेंगे। हमने अभी पढ़ा था सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एल्केन, डबल बॉन्ड को हम कहेंगे एल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम कहेंगे एल्काइन। हमने सिंगल बॉन्ड में सफिक्स लगाया था एन, ANE। हम डबल बॉन्ड में सफिक्स लगाएंगे इन, ENE। हम ट्रिपल बॉन्ड में सफिक्स लगाएंगे YNE। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी एक अकेला कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बना सकता। सिंगल बॉन्ड ज़रूर बना सकता है, पर डबल और ट्रिपल के लिए हमेशा 2 कार्बन चाहिए। तो यहाँ से जो इनकी सीरीज़ है वो स्टार्ट होती है 2 कार्बन से। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, C डबल बॉन्ड C बन रहा है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2। तो मैंने बताया था कार्बन 2 है तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, इथ, और सफिक्स क्या लगेगा, इन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। 3 कार्बन होते हैं तो प्रीफिक्स लगेगा प्रॉप, एंड सॉरी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मिसिंग है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा, एंड यहाँ पर सफिक्स क्या लगेगा, इन। एल्काइंस की बात करें तो यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स लगा इथ, एंड सफिक्स क्या लगा, आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रीफिक्स लगा प्रॉप, एंड सफिक्स लगा आइन, क्योंकि 3 यहाँ पर बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो प्रीफिक्स किसको देख के हम लगा रहे हैं, प्रीफिक्स हम लगा रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखकर, और सफिक्स किसको देखकर हम लगा रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। डोंट वरी, इसकी एक टेबुलर फॉर्म है और इसका एक जो 3D एनिमेशन वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अपलोड करूँगी। सो अभी तक सिर्फ इतना ध्यान रखना, एंड रीड दिस फ्रॉम द बुक सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। थैंक यू सो मच।